Hello everyone, good morning. Welcome you back in the topic lines and angle, and we are basically working on types of angle. We have learned few angles and few we are going to discuss today, and we will be continuing solving question based on those. Before that, yesterday I gave you a holiday as it was the result of 10th standard and it was a just awesome result. So I just would like to tell you few highlights of the yesterday's result of our tuition. First thing is there were almost 70 students in all in 10th standard 70, and out of 70 students, those who all were there in 10th standard, 50% of the student, 35 students, 35 students have scored above 85 marks in mathematics, and 30 students percent nahi, I'm sorry, 30 students have scored above 90 marks. You can understand. So such a great result, and it is excellent performance. One child has scored out of out marks. I'm purposely not going to declare the name of the child. Later on we can discuss about it, but one child has got out of out marks. But for me, what is important here is, I think, but the child who is scoring almost 35 in 9th standard, she is scoring 94 in board examination. So that a great change the children can bring in mathematics. Okay, so this is what kind of a result I'm expecting from you people as well, rather better than this. So however, as comparing lockdown, as compared to last year, I have reduced the number of students. So we have only 30 students, right? So I want each and everyone in 10th standard, not just in 9th standard, but in 10th standard, to score above 90 marks. Okay, I never expect out of out marks and all. I expect just to score your level best. Okay, and that can be just above 90. That's it, enough for me. Okay, I just hope you can bring this glory to our tuition, and consider, or maybe make me proud saying you all as my students. Okay, so when it comes to mathematics, I must feel that my children are the best. Okay, so it's a very great performance by 10 standard children. Clap for them, and we'll continue with our regular part, that is lines and angle. What we have learned before this, that I'll just tell you. First of all, we have learned about linear pair. You got to know, you must have understood. So in the diagram, if I check, angle 1 and angle 2 are linear pair. Angle 1 angle 2 are linear pair, right? Angle 2 angle 3 are linear pair, है ना? Angle 3 angle 4 are linear pair. Angle 1 angle 4 are also linear pair. So there are so many linear pairs, and the same way down in 5 6 6 7 7 8 and 8 5, all these are nothing but the linear pair, isn't it? So this is what we have discussed before this. Adjacent angle at a point. That means maybe here in this case, if I consider angle 1 2 3 4 together are adjacent angle at a point. Okay, and their addition is equal to 360 degree. Am I correct? हाँ, एंड ऑफ कोर्स लिनियर पेयर का एडिशन कितना आता है? 180 डिग्री, राइट, है ना? याद आया, ये आता है 180 डिग्री, ये आता है 360 डिग्री, एंड वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल. तो कौन से होते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल? 1 and 3 वर्टिकली अपोजिट एंगल, 3 and 4 of course vertically opposite angle, 5 and 7 vertically opposite angle, 6 and 8 vertically opposite angle. So these are the angles we have discussed before this, and you of course have to remember that as well as when we go for the next one, because everything now it will be combined. Now the next thing we are going to discuss about corresponding angle, alternate angle, and interior angle when a transversal intersect two lines, especially when it intersect two parallel lines. So imagine line L and line M are parallel, and N is a transversal. Transversal means the line which cut the lines is called as a transversal. So let us consider N is a transversal, and L and M are the two parallel lines. I'm considering parallel line because transversal can be even without a parallel line, and all these angles also can be made without a parallel line as well. But what we are going to discuss in this particular grade are all about parallel lines. So that's the reason I'm considering this line L and line M are parallel always. तो यहाँ पे मैं already यहाँ पे लिख लेता हूँ कि L is parallel to M. It is written in small letter because line is represented with small letter as well. So in this manner. Anyway, we'll continue. So corresponding angle कौन से होता है? Corresponding angle मतलब twin angle, twin, एक जैसे दिखने वाले.
ट्विन एंगल, जैसे कि अभी देखो एंगल 2 एंड एंगल 6 आर कॉल्ड एज अ करस्पॉन्डिंग एंगल, जो एक जैसे दिख रहे देखो जरा, ट्राई टू गेट अ फील ऑफ इट. ओके, सिमिलरली एंगल 1 एंड एंगल 5 आर ऑल्सो करस्पॉन्डिंग एंगल. चलो मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ एंगल 2 एंड एंगल 3, सॉरी 3 नहीं 6, एंगल 6, एंगल 1 एंड एंगल 5. So can you find two more pairs here? Yes, angle 3 and angle 7, and angle 4 and angle 8. Just imagine that. Properly imagine it where these all are and how are they looking like. Because the same thing you have to guess when you get a diagram. And diagram you won't get in the similar way how it is there on the board. You can get in this manner as well. अभी देखो ये triangle है, ये एक line है, ये parallel है. ठीक है, तो ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाता है, करस्पॉन्डिंग हो जाता है. देखो ट्राई टू इमेजिन, ऐसे इमेजिन करना पड़ता है आपको. तो ये रहा वो ट्रांसवर्सल एंड द टू पैरेलल लाइन, दिख रहा है आपको. तो ऐसे इमेजिन, ये और ये भी वैसे ही सेम वे करस्पॉन्डिंग है. तो यू हैव टू प्रॉपरली इमेजिन इट. ठीक है, एनीवे तो अभी तक तो यहाँ तक ठीक है. लेकिन करस्पॉन्डिंग एंगल अगर लाइन पैरेलल हो तो कैसे होते हैं, दे आर ऑलवेज इक्वल. यू कैन चेक, यू कैन सी देम दैट दे आर इक्वल, है ना, देख लो एक बार ठीक से, दे आर इक्वल. तो करस्पॉन्डिंग एंगल हमेशा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं इन द पैरेलल लाइंस. इफ द टू लाइंस आर पैरेलल एंड वन ट्रांसवर्सल इज इंटरसेक्टिंग, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल. तो ये रहे आपके करस्पॉन्डिंग एंगल. यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, इफ़ यू वांट टू सी दैट करस्पॉन्डिंग एंगल. नेक्स्ट देखते हैं अल्टरनेट एंगल कौन से होते हैं. जो ये हो गया आपका सेकेंड थिंग इज अल्टरनेट एंगल. आप ये देखते हैं अल्टरनेट एंगल कौन से होते हैं. थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूँ मैं. अल्टरनेट एंगल इज, देखो यहाँ पे लिख लेता हूँ अल्टरनेट एंगल. हम लोग बस एक टाइप के अल्टरनेट, बिकॉज इन योर 8th स्टैंडर्ड ऑल्सो यू हैव लर्न दिस एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, ऐसे बहुत सारी चीज़ें थी. लेकिन हम लोग एक ही बारे में डिस्कस करें, जस्ट अल्टरनेट एंगल. सो इन 9th स्टैंडर्ड वी आर नॉट unnecessarily going to trouble ourselves by taking exterior and interior word. I'm directly going to say just alternate angle. Okay, and which are those that you have to just remember it, nothing else. तो आपको बाकी सारी चीज़ें you have to forget and just understand what exactly is alternate angle this year. Okay, ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ. alternate मतलब it will look alternate, मतलब जैसे ये ट्रांसवर्सल है, ट्रांसवर्सल के इस साइड एक एंगल है एंड इस साइड एक एंगल है, तो ऐसे एंगल्स को हम लोग बोलते हैं अल्टरनेट एंगल. जस्ट फील द डायग्राम देयर. अल्टरनेट आइदर साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल. अल्टरनेट का मतलब क्या होता है, एट द आइदर साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल. सो देयरफॉर एंगल 4 एंड एंगल 6 आर अल्टरनेट एंगल्स, एंड एंगल 3 एंड एंगल 5 आर अल्टरनेट एंगल. जैसे ये भी हो सकता है ना, ये और ये भी एंगल 3 एंड एंगल 5 भी हो सकता है ना, बराबर. एंड हाउ आर दे, of course they are again equal when it comes to parallel lines. So when we have lines parallel, alternate angles are also equal. जैसे corresponding angle equal होते हैं, वैसे alternate angle भी क्या हो जाते हैं, equal होते हैं. अभी रही बात किसकी, इंटीरियर एंगल्स की. अभी ये इंटीरियर एंगल क्या होते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग, थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं. इंटीरियर एंगल्स. तो इंटीरियर एंगल्स भी कैसे होते हैं, बिटवीन द टू लाइन्स होते हैं. बिटवीन द टू लाइन्स मतलब ये दो लाइन्स के बीच में, कौन से, एल एंड एम के बीच में. ये जो अल्टरनेट है एंड इंटीरियर एंगल्स है, ये दोनों कैसे होते हैं, दो लाइन्स के बीच में होते हैं. तो कौन से होते हैं इंटीरियर एंगल्स, लेट अस सी. देखो एंगल 4 एंड एंगल 5 मतलब एट द सेम साइड. जैसे अल्टरनेट कैसे होता है, अपोजिट साइड होता है, वैसे इंटीरियर कैसा होता है, सेम साइड होता है. समझने की कोशिश करो, एट द सेम साइड, इंटीरियर एंगल्स एट द सेम साइड. जैसे अल्टरनेट के एक्जैक्टली अपोजिट. अल्टरनेट एंड इंटीरियर एक दूसरे के क्या है, दुश्मन है. अल्टरनेट क्या होता है, एक दूसरे के आइदर साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, एंड इंटीरियर क्या होता है, सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल. बात समझ में आ रही है. तो वी हैव हियर एंगल 4 एंड एंगल 5 आर इंटीरियर एंगल, एंड सिमिलरली ऑन द अदर साइड 3 एंड एंगल 6 आर द इंटीरियर एंगल्स. ठीक है, देयर कैन बी इवन 1 and 8 एज वेल इंटीरियर, बट उसको हम लोग इस ग्रेड में मतलब 9th में कंसिडर नहीं करेंगे. ठीक है, हम लोग ये दो ही एंगल्स के बारे में सोचने वाले, जो अंदर है, वो ट्रांसवर्सल के अंदर है. सो डोंट हैव टू वरी फॉर इट. ठीक है, तो चलो देखते हैं इंटीरियर एंगल कौन से है. इंटीरियर एंगल कौन से है, ये है. एंड इसके बारे में कैसे पता चलेगा, हमें इक्वल है क्या. देखो अभी एंगल 4 एंड एंगल 5 के बारे में इफ आई वांट टू चेक, एंड एंगल 3 एंड एंगल 6 के बारे में चेक करना है. देखो 4 एंड 5 इक्वल हो सकते हैं क्या, बिल्कुल भी नहीं हो सकते. एक तो एक्यूट दिख रहा है, दूसरा ऑब्ट्यूस दिख रहा है, तो 100% श्योर दे आर नॉट इक्वल. तो ये कैसे होंगे, सप्लीमेंट्री होते हैं. तो इनका एडिशन कितना होता है, 180 होता है.
इनका एडिशन कितना होता है, 180 होता है। तो इंटीरियर एंगल क्या होते हैं, 180 डिग्री सप्लीमेंट्री एक्चुअली बेसिकली वी हैव टू से। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। चलो मैं क्या करता हूँ, इसको इरेज कर देता हूँ एंड वी विल हैव अनदर डायग्राम एंड यू विल वेरीफाइड वेदर यू अंडरस्टैंड इट और नो दैट यू योर सेल्फ विल गेट दैट। चलो देखते हैं। अभी हम लोग अगेन लाइन एल एंड एम पैरेलल कर देते हैं। चलो देखते हैं। चलो ये रहा मेरा लाइन एल, ये रहा मेरा लाइन एम, ओके, एंड देन वी हैव अ ट्रांसवर्सल एज वेल, ये रहा मेरा ट्रांसवर्सल। ठीक है, चलो अभी थोड़े से एरोज ड्रॉ करता हूँ मैं, एल एम एंड एन इज़ माई ट्रांसवर्सल। ठीक है, तो मैं कुछ एंगल्स के नाम दे देता हूँ इस बार, ए बी सी डी पी क्यू आर एस। चलो देखते हैं, डिस्कस करते हैं। सबसे पहले करस्पॉन्डिंग एंगल, तो कौन से है करस्पॉन्डिंग एंगल, कम ऑन टेल मी। करस्पॉन्डिंग एंगल, तो करस्पॉन्डिंग एंगल यहाँ पे लिख लेते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, ए करस्पॉन्ड्स टू पी, देखो सेम प्लेस पे दिखने वाले ट्विन होते हैं। ए करस्पॉन्ड्स टू पी, ठीक है, डी करस्पॉन्ड्स टू क्यू, सी करस्पॉन्ड्स टू आर एंड बी करस्पॉन्ड्स टू एस। आई होप यू कुड गेस द सेम। करस्पॉन्डिंग एंगल हो गए। अल्टरनेट एंगल देखते हैं। अल्टरनेट एंगल भी इक्वल होते हैं। ठीक है, तो वो एक साथ लिख लेते हैं हम लोग, ज़्यादा नहीं होते, 2 ही पेयर होते हैं अल्टरनेट एंगल के। अल्टरनेट एंगल क्या होता है, आइदर साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, राइट। सो सी is equals to P and D is equals to S. Are these alternate angle? Yes, exactly. These are alternate angle. We have interior angle. Let's talk about interior angle. ठीक है, how about interior angle? We know interior angles are the same way like alternate angle, but ये either side होता है, ये same side होता है। तो C and S are interior angle, लेकिन स्पेशलिटी क्या है, C plus S is going to be equal to 180 डिग्री। ये डिफरेंस है इन दोनों में, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल में। एंड सिमिलरली D plus P is of course equals to 180 डिग्री एंड दैट्स इट। सो ईजी, इजंट इट। आप लोगों को करना क्या है, बस ये जो डायग्राम दिया हुआ है अभी राइट नाउ, उसको इस नाम के साथ, करस्पॉन्डिंग एंगल, अल्टरनेट एंगल एंड इंटीरियर एंगल के साथ आपको क्या करना है, एक पेज पे लिख के रखना है, सो दैट whenever unnecessary you get confused that time you can open it and check it, okay। बट ये बहुत ईजी है, अपने 8th स्टैंडर्ड में 7th स्टैंडर्ड में भी ये किया होगा, ऑलरेडी किया होगा, तो ठीक है, उसको याद करो, आपको ये सब कुछ आ जाएगा। और ज़्यादा कंफ्यूजिंग नहीं है। 7th में आपको बहुत सारे अलग अलग एंगल्स भी थे ना, एक्सटीरियर अल्टरनेट एंड इंटीरियर अल्टरनेट एंड ऑल दोज, ऐसे कुछ नहीं है इसमें बहुत सिंपल दिया हुआ है। सिर्फ 3 ही टाइप के एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल, अल्टरनेट एंगल, इंटीरियर एंगल, काम खत्म, दैट्स इट। ठीक है, डन। चलो तो लेट्स क्विकली जंप फॉर द क्वेश्चंस। चलो आगे बढ़ते हैं, फटाफट आगे बढ़ते हैं। अभी देखो यहाँ पे लाइन एल इज पैरेलल टू लाइन एम दिया, लाइन एल दिखाई नहीं दिया, ओके, लाइन एल एंड लाइन एम पैरेलल है, दिखाई दे रहा है। एंड यू हैव टू फाइंड एक्स वाई जेड। तो 1 बाय 1 हम लोग सारे वैल्यूज फाइंड करते हैं। सबसे पहले, इज इट पॉसिबल फॉर यू टू फाइंड आउट एक्स वैल्यू? आई एम जस्ट आस्किंग यू डायरेक्ट क्वेश्चन, इज इट पॉसिबल फॉर यू टू फाइंड आउट एक्स वैल्यू? यस, इट इज पॉसिबल। देखो ठीक से देखो, 50 के साथ जो x है वो कैसा है, लीनियर पेयर में है। देखो मैं आपको पहले ही बोल चुका हूँ, ये सिर्फ अब हमने 3 देखे, इसका मतलब ये नहीं कि आप ऊपर वाले भूल जाओ, उनको तो याद रखना ही पड़ेगा। उनको याद रख के ये यू हैव टू सॉल्व। सो कीप इन माइंड दैट यू हैव टू रिमेंबर दोज क्वेश्चन एज वेल एज दोज एंगल एंड एज वेल एज न्यू एंगल्स। तो 50 के साथ अगर मैंने x को जोड़ दिया तो इट इज गोइंग टू बी इक्वल टू 180 डिग्री। तो x plus 50 is going to be equal to 180 degree. Reason you can write linear pair. So we have x is equals to 180 minus 50 degree. So how is x is equals to 130 degree? That's it. Hope you get it. Now I can find x and y में relation. Can I find? धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। x and y कैसे दिख रहा है आपको? Alternate दिख रहे हैं। तो therefore x is equals to y. क्यों है? Alternate angle. Therefore y is also equals to 130 degree. That's it. काम खत्म, y का काम खत्म हो गया। अभी z एंड y में कुछ रिलेशन है, z एंड y देख लो, वर्टिकली अपोजिट एंगल, एग्जैक्टली। तो z इज इक्वल्स टू y, रीजन क्या होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल, एंड देन z इज ऑल्सो इक्वल्स टू 130 डिग्री। तो फॉर्चुनेटली ऑल द आंसर्स फॉर x, y एंड z आर 130 डिग्री। देखो कितना ईजी है, कितना सिंपल है, बहुत ईजी है, इजंट इट। हम बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करने वाले हैं। बात ये नहीं है कि
this is the only way. Another thing is it's not just the only way. We have multiple ways. जैसे कि x को डायरेक्टली लेके z फाइंड करो, करस्पॉन्डिंग एंगल देख लो, एंड व्हाट इज z, अगेन 130, एंड z एंड y वर्टिकली अपोजिट करो तो भी चल जाएगा. तो इन दिस मैनर यू कैन हैव मल्टीपल वेज. इट्स नॉट जस्ट अबाउट जस्ट वन वे, यू कैन हैव मल्टीपल वेज. मैंने एक बता दिया, आप लोग किसी भी वे से सॉल्व कर सकते हो, देयर इज नो प्रॉब्लम. चलो आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चन देखते हैं. ये देखो, ये रहा आपका क्वेश्चन. नाउ इमेजिन वी आर गिवन दैट द रेशियो ऑफ एक्स एंड वाई इज 3:2. तो जब भी रेशियो आता है, देखो x:y इज इक्वल टू 3:2, जब भी रेशियो आता है तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सबसे पहले कॉमन मल्टीपल लेते हैं. सो लेट द कॉमन मल्टीपल बी ए. उसको ए लिया तो x विल बी इक्वल टू 3a, एंड ये याद रहना चाहिए आपको, y विल बी इक्वल टू 2a. ये बहुत बार यूज़ करने वाले आप लोग, बहुत बहुत बार यूज़ करने वाले. ठीक है, तो ये आ गया मेरे दो कर्ण अर्जुन, x इज इक्वल टू 3a एंड y इज इक्वल टू 2a. अभी हम लोग क्या करेंगे, x एंड y में रिलेशन ढूंढने की कोशिश करते हैं. x एंड y में रिलेशन ढूंढने की कोशिश करते हैं. ये कैसे लग रहा है आपको, देखो ठीक से देखो अपना पहला वाला, ये देखो. तो इसमें से किसमें फिट होता है वो देखो, मुझे लगता है ये C एंड S में फिट होता है ना, देखो ठीक से, है ना. तो व्हाट आई एम गिवन हियर कि x एंड y आर इंटीरियर. तो इंटीरियर का मतलब क्या होता है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री. ये रहा रीज़न, क्या है, इंटीरियर एंगल. सो आप, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, आपको पूरा लिखना है. x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, बट व्हाट इज x, x इज 3a, y इज 2a, 180 डिग्री बराबर है. 3a प्लस 2a कितना था, 5a, 180 डिग्री. a विल बी इक्वल टू 5 3 ज़ा 15, 5 6 ज़ा 30. बट आई एम सपोज टू फाइंड आउट z. ठीक है, z फाइंड करना है, तो इसके लिए मुझे x या फिर y तो फाइंड करना ही पड़ेगा, देयर इज नो ऑप्शन. चलो फिर x क्या होता है, a इज 36, x इज 3 है, 3 इंटू 36 तो कितना होता है x, देखो 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 ठीक से, 108, एंड y कितना हो जाएगा, 2 इंटू 36 कितना हो जाएगा, 54 में भी, इज इट, नहीं 72, सॉरी 72. ओके, समझ में आ गया. एक्स एंड वाई तो मुझे मिल गया, लेकिन हमें जेड फाइंड करना है. अभी देखो जेड कैसे फाइंड कर सकते हैं, देखो दो बातें हो सकती है इसमें. एक तो y एंड 1 में रिलेशन ढूंढो, एंड 1 इज डायरेक्टली इक्वल टू z, करस्पॉन्डिंग एंगल. y एंड 1 में क्या रिलेशन है, लीनियर पेयर, दैट्स वन वे. सेकेंड वे इज, ये पूरा कैंसिल ही कर दो. देखो x एंड z में क्या रिलेशन है, डायरेक्ट x एंड z में क्या रिलेशन है, अल्टरनेट एंगल है. सिंपल सी बात है, अल्टरनेट एंगल, तो हो गई बात खत्म. तो x इज इक्वल टू z, x इज इक्वल टू z, रीज़न क्या है, अल्टरनेट एंगल. ये है मज़ा इस टॉपिक का, अल्टरनेट एंगल. सो x क्या हो जाता है, सॉरी z क्या हो जाता है हमारा, z जो मुझे फाइंड करने के लिए बोला वो कितना है, x के साथ इक्वल है, तो z इज ऑल्सो इक्वल टू 108 डिग्री. दैट्स इट, ये आ गया मेरा आंसर, डन. ठीक है, एक यहाँ पे छोटी सी मिस्टेक है क्वेश्चन में. लेट मी टेल यू, क्वेश्चन में मिस्टेक है. क्यों मिस्टेक है मैं बता देता हूँ. ये सभी सॉल्यूशन ट्रू होगा तभी होगा जब ये लाइंस पैरेलल हो, और यहाँ पे तो लाइंस पैरेलल दी नहीं है. तो ये बस मैं चेंज करता हूँ आपके पीडीएफ में, एल एम एंड एन जो है वो एक दूसरे को कैसे है, पैरेलल है. तो एल इज़ पैरेलल टू एम इज़ पैरेलल टू एन, यू हैव टू नो दिस. ओके, देन ओनली ये सॉल्यूशन अभी आपका ट्रू होगा. ठीक है, समझ में आया, इज दिस क्लियर. इंटरेस्टिंग है ना, बहुत इंटरेस्टिंग है. ये तो अभी शुरुआत है, अभी तो बहुत कुछ करना बाकी है. ठीक है, आगे बढ़ते हैं, चलो आगे बढ़ते हैं. ये भी ऐसे ही है, यहाँ पर भी ए बी पैरेलल टू सी डी नहीं दिया है, तो इसको पहले लिख लो आप पीडीएफ में, एंड देन हम लोग कंटिन्यू करते हैं सॉल्यूशन को. सबसे पहले सॉल्यूशन के बारे में या फिर क्वेश्चन के बारे में सोचना बंद कर दो. अनलेस एंड अनटिल यू स्टॉप थिंकिंग, यू विल नॉट अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू. तो पहले थोड़ा सा दिमाग को ठंडा करो एंड शांत रहो. व्हाट आई एम टेलिंग यू, ओनली थिंक टूवर्ड्स इट, थिंक फॉर इट. ओके, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इन ऑल द क्वेश्चंस आफ्टर दिस. इफ़ यू अंडरस्टैंड दिस देन ओनली यू विल अंडरस्टैंड द अदर पार्ट ऑफ दिस टॉपिक. ठीक है, तो बहुत और ईजी भी है, कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं. देखो हाँ, मैं क्या बोल रहा हूँ, देखो आपको जो एंगल्स पता है उसमें उसका यूज़ करके आई जस्ट वॉन्ट यू टू टेल मी दिस एंगल, ये एंगल कितना आएगा, कौन सा,
GEF। ठीक से देख के मुझे बताओ ये एंगल कितना आ सकता है। ठीक से देखो, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये बहुत इजी है या फिर बहुत डिफिकल्ट है। ठीक से देख के मुझे बताओ ये एंगल कितना आएगा। नहीं है तो मैं डायरेक्टली लिख लेता हूँ, आएगा तो कमेंट करो, ठीक है, आंसर को कमेंट करो, पॉज करो तो फाइंड GEF डायरेक्टली ऑल बाय योरसेल्फ। चलो फाइंड करो, GEF फाइंड करो एंड उसको कमेंट करो। आंसर जो आएगा मैं देखता हूँ किसका किसका सही आता है। कल आपने बहुत अच्छे से कमेंट किया था और करेक्ट था, बहुत सारे लोगों का आंसर एकदम परफेक्ट था। ओके, कमेंट वेर रियली रियली वेरी गुड एंड इट इट हेल्प मी दैट yes my people, my students are watching and really they are answering the questions. I am very very happy, वेरी हैप्पी। बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया हुआ है, तो आज भी कर दो, आज भी कर दो। 2-4 क्वेश्चन मैं पूछता हूँ, चलो देखते कितने कितने लोग इसको कमेंट करते हैं। ओके, इसका आंसर मुझे आप लिख के दे दो, ठीक है, डायरेक्टली आंसर दे दो, चलेगा। फास्ट, मतलब नो वेस्टेज ऑफ टाइम, सिर्फ ऐसे नंबर डाल दो, काम खत्म, बहुत हो जाएगा मेरे लिए। चलो अभी मैं बता देता हूँ, ऑफकोर्स आई हैव टू टेल यू दैट, अदरवाइज आई वोंट बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन। चलो ठीक है, अभी मैं बता देता हूँ GEF कितना आएगा। GEF जो है वो आएगा, मैं बताता हूँ आपको, 126 - 90 डिग्री। ये जो है ये सब्ट्रैक्शन ऑफ एंगल यू मस्ट अंडरस्टैंड। देखो, ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैंने क्या किया, GEF चाहिए मुझे, ट्राई टू नो दैट। एक मिनट में कलर चेंज करता हूँ। ये देखो GEF चाहिए, तो GEF कैसे मिलेगा, ये टोटल एंगल माइनस ये 90 वाला एंगल। ठीक है, समझ में आ रहा है। देखो, ट्राई टू अंडरस्टैंड, देखो देखो देखो, ट्राई टू नो दैट। ये टोटल एंगल माइनस ये यहाँ तक का एंगल इज गोइंग टू गिव मी GEF, बराबर है ना। देखो, ये टोटल एंगल यहाँ से यहाँ तक माइनस यहाँ से यहाँ तक एंगल, तो मुझे ये मिल जाएगा, बराबर है ना। बात समझ में आ रही है, दोनों का सब्ट्रैक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सब्ट्रैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। 126 - 90 कितना हो जाएगा, 6 - 0 is 6 and 12 - 9 is 3, 36 हो जाएगा। तो मेरा GEF कितना आ गया, 36 डिग्री। तो छोड़ दो अभी GEF को, तो अब मेरा आंसर ये तो आ गया। अभी ये लाइन तो पैरेलल है, वो मुझे पता है। AGE पूछा है, AGE मतलब कौन सा एंगल, ये क्या हो गया, AGE देखो, AGE मतलब ये एंगल हमें पूछा है। ओके, बाकी सब भूल जाओ। ओके, कैसे भूलते हैं उसको देखना ही नहीं है। अभी आपके लिए मैं ये कर देता हूँ, इसको इरेज करने की कोशिश करता हूँ। देखो, वाइटनर लगा देता हूँ इसको। अभी ठीक से देखो, आप लोगों को दिखता है क्या, देखो अभी देखो ठीक से, ये कैसे लग रहे हैं आपको, कैसे लग रहे हैं, ये एंगल अल्टरनेट लग रहा है ना, है ना। सिंपल सी बात है यार, कुछ नहीं है, सिंपल है। ये भी एंगल जैसे ये 126 है, ये भी कितना आ जाएगा, 126 डिग्री आ जाएगा, काम खत्म, दैट्स इट। तो ठीक है, लॉजिक तो समझ में आ गया। अभी प्रेजेंटेशन देखते हैं। सबसे पहली बात तो हमें क्या फाइंड करना था, हमें करना था AGE। तो एंगल AGE इज इक्वल्स टू एंगल GED। GED नेम देना आना चाहिए आपको। रीजन क्या होगा इसका, अल्टरनेट एंगल। नेमिंग ऑफ एंगल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो लर्न इट। तो देयरफॉर एंगल AGE इज इक्वल्स टू 126 डिग्री। और ये आपको विदाउट वाइटनर समझ में आना चाहिए। यही है इस टॉपिक का मेन पार्ट। विदाउट वाइटनर मतलब विदाउट, आपको विजुलाइज होना ही चाहिए कि कौन सा अल्टरनेट है, ठीक से विजुलाइज होना चाहिए, वो भी करेक्ट आना चाहिए। ठीक है, ये हो गया आपका, खत्म हो गया, स्टेप ही खत्म हो गया, मतलब सॉल्यूशन ही खत्म हो गया। एंड सेकंड थिंग इज ऑफ कोर्स दिस इज इक्वल्स टू 126 - 90 डिग्री एंड द आंसर इज देयर। ये हो गया आपका आंसर, 36 एंड 126 डिग्री। ठीक है ना, ईजी था, है ना, ईजी है, बहुत ईजी है, डोंट वरी, बहुत ज़्यादा सिंपल है। बस आपको करना क्या है, थोड़ा सा आपको जो मैं बोलता हूँ उसके तरफ फोकस करना है। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वाइटनर वाला कॉन्सेप्ट है, तो पहले वाइटनर, पता नहीं ये है क्या, हाँ है वाइटनर ये। चलो देखते हैं, सबसे पहले हम लोग किसको फाइंड करना है, इसके ऊपर फोकस करेंगे। चलो इमेजिन करो कि मुझे एक्स फाइंड करना है, धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। एक्स ही फाइंड करना है, तो अगर एक्स फाइंड करना है तो बाकी चीज़ों को भूल जाओ। चलो इसको अभी हम लोग क्या करते हैं, वैसे इरेज कर देते, वाइटनर लगा देते, बाकी चीज़ों को भूल गए। अभी ठीक से देखो, वेरी प्रॉपरली अंडरस्टैंड करो कि ये कैसे लग रहे हैं दोनों। देख लिया कैसे लग रहे हैं, अल्टरनेट लग रहे हैं ना, लग रहे, तो अभी भी तो अल्टरनेट ही है ना। तो x इज इक्वल्स टू 50 डिग्री, डायरेक्टली 50 आ जाता है, राइट। तो कैसे करेंगे, लिखेंगे कैसे, देखो एंगल
क्यू टी इज इक्वल्स टू एंगल क्यू टी यू और क्यू टी वी। रीजन क्या है? अल्टरनेट एंगल। पी क्यू टी कितना है? 50 डिग्री है एंड ये कितना है? एक्स है। हो गया मेरा काम खत्म। एक्स इज इक्वल्स टू 50 डिग्री। दैट्स इट, दैट्स इट। ठीक है। अभी ये थोड़ा सा वियर्ड हो जाता है। अभी एक्स एंड वाई में रिलेशन तो है नहीं। लेट मी टेल यू क्यों नहीं है। क्योंकि एक्स एंड 50 में है ऑफकोर्स, एंड एक्स एंड ये कंप्लीट में रिलेशन है, तो ये तो नहीं बनेगा। तो फिर हम लोग क्या करेंगे? हम लोग इसको छोड़ देते हैं ना। जैसे कि हम लोग क्या करेंगे, ये एक्स को निकाल देते हैं, नहीं इसको भी निकाल देते हैं। ठीक से देखो, अभी ये एंगल और ये एंगल कैसा है? अल्टरनेट है, बराबर है ना? इज दिस क्लियर? तो दैट मीन्स व्हाट? एंगल पी क्यू यू इज इक्वल्स टू एंगल क्यू यू वी। क्यू यू वी देख लो, समझने की कोशिश करो। रीजन क्या है यहाँ पे? अल्टरनेट एंगल। सब अल्टरनेट एंगल का है कॉन्सेप्ट यहाँ पे, सब कुछ उसी कैटेगरी का है। चलो देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। पी क्यू यू, पी क्यू यू क्या है? पी क्यू यू, पी क्यू यू है नॉट 50 नॉट वाई, इट इज 50 प्लस वाई, है ना? समझ लो, दोनों का एडिशन है, टोटल है, राइट? क्यू यू वी, क्यू यू वी इज इक्वल टू कितना है? 129 डिग्री है। कैन यू फाइंड वाई? इजीली यू कैन फाइंड, इजंट इट? तो 129 माइनस 50 इज गोइंग टू गिव यू वाई वैल्यू, एंड दैट्स इट। डिग्री लिखना मत भूलना, ओके? आंसर में लिखो, ये कैलकुलेशन में लिखने की जरूरत नहीं है। आंसर में आप लोग डिग्री लिखना मत भूलना, बस दैट्स इट। बाकी कहीं भी डिग्री नहीं लिखा तो इट्स ओके, बाय मिस्टेक यू फॉरगॉट, इट्स अंडरस्टूड। लेकिन आंसर, फाइनल आंसर में 100% आपको क्या लिखना होगा? डिग्री का साइन लिखना होगा। दैट्स इट। हो गया ना? समझ में आ गया ना? कर सकते हो ना ये सारे क्वेश्चंस? करो खुद से, ये विदाउट एनी वाइटनर, है ना? कंप्लीट करो, ट्राई टू वर्क ऑन, ट्राई टू विजुलाइज इट। तो विजुलाइजेशन यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी बन जाता है। ये भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, लास्ट वाला क्वेश्चन है आज के दिन का, सो दैट वी अंडरस्टूड द टाइप्स ऑफ एंगल एंड थोड़े क्वेश्चंस किए। कल हम लोग थोड़े ज़्यादा क्वेश्चंस करेंगे, थोड़ा सा और डिफिकल्ट करेंगे क्वेश्चंस को, टॉपिक को। लेकिन आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है। तो चलो देखते हैं लास्ट क्वेश्चन कैसे करना है, इसको प्रूव कैसे करना है। देखो, सबसे पहली बात तो हमें ये ढूंढना पड़ेगा कि इस एक्स एंड वाई में रिलेशन है या ए एंड एक्स में रिलेशन है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ए एंड एक्स में रिलेशन है। क्या होना चाहिए ए एंड एक्स में रिलेशन? चलो देखते हैं, टाइप्स ऑफ एंगल में जाते हैं। तो कौन सा एंगल हो सकता है वो? चलो देखो, इंटीरियर एंगल हो सकता है, करस्पॉन्डिंग हो सकता है, अल्टरनेट हो सकता है, कौन सा हो सकता है? देखो, कुछ समझ में आ रहा है? ए एंड एक्स के बारे में बहुत बात कर रहा हूँ मैं, ए एंड एक्स के बारे में। तो ये है, देखो, ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। इफ यू वांट मी टू शो यू, आई विल जस्ट शो यू बाय एक्सटेंडिंग इट। इमेजिन करो कैसे एक्सटेंड कर दिया और इसको ऐसे एक्सटेंड कर दिया। ठीक है, अभी देखो ये जो एक्स एंड ए है, ये कैसे एंगल्स है? दिख रहा है आपको? इंटीरियर नहीं लग रहा है? इंटीरियर है ना? इंटीरियर एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स के क्या होती है स्पेशलिटी? लाइन्स ऑफ पैरेलल। तो एक्स प्लस ए या तो इक्वल तो नहीं होते, इज इक्वल टू 180 होता है। ठीक है, अभी चेक करो, अभी वाई एंड ए में रिलेशन है क्या? देखते हैं। वाई एंड ए भी रिलेशन है, देखो, ट्राई टू अंडरस्टैंड। इमेजिन करो कि मैंने इसको ऐसे एक्सटेंड कर दिया, ये भी दो लाइन्स पैरेलल है। ठीक है, ऐसे नहीं होता कि लाइन पैरेलल मतलब हमेशा हमेशा देखो ऐसे ऐसे ही लाइन पैरेलल होंगे यानी ये ट्रांसवर्सल होगा। ऐसे भी लाइन पैरेलल हो सकता है और ये भी ट्रांसवर्सल हो सकता है। तो इन दैट केस ऑल्सो ये दो जो होते हैं द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल आर ऑलवेज कंसिडर टू बी इंटीरियर एंगल्स। तो यहाँ पर वही चीज़ वो बन रही है, दो लाइन्स ऐसे वर्टिकली पैरेलल है एंड वी हैव अ ट्रांसवर्सल। देखो एक बार ठीक से देखो, वी हैव अ ट्रांसवर्सल, देखा? तो व्हेन दिस ट्रांसवर्सल इंटरसेक्टेड, ये जो ए एंड वाई है, हाउ आर दे लुकिंग लाइक? अगेन इंटीरियर। तो वाई प्लस ए इज ऑल्सो इक्वल्स टू 180 डिग्री। हमें दो इक्वेशन मिल गए एंड आई टोल्ड यू ऑलरेडी, टू इक्वेशन को आप बहुत कुछ कर सकते हैं। आप ऐड कर सकते हैं, आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, आप इक्वेट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको क्या करना होगा? ट्राई टू टेल मी, कैसे करेंगे हम लोग इसको? यहाँ पे क्या करना है? इक्वेट करना है। इट्स वेरी क्लियर, लुकिंग एट प्रूविंग व्हाट आई हैव टू प्रूव, इट्स वेरी क्लियरली सीइंग कि आपको यहाँ पे इक्वेट करना है। तो देयरफॉर यहाँ पे फ्रॉम 1 and 2 we have x plus a is equals to y plus a.
बात समझ में आ रही है? ए एंड ए तो कैंसिल हो जाएंगे बोथ द साइड, एक्स इज इक्वल टू वाई, हो गया मेरा प्रूफ। इसके लिए बस रीज़न लिखना रह गया था, इंटीरियर एंगल दोनों के लिए एक साथ सेम रीज़न यू कैन राइट इन वन गो। दैट्स इट, दैट्स इट, सो सिंपल। बहुत मज़ा आता है ज्योमेट्री करने में, है ना? तो आई जस्ट फील दैट यू ऑल आर एन्जॉइंग इट, राइट? कमेंट करके 100% मुझे भेजना वेदर यू आर एन्जॉइंग और नो, ओके, वेदर यू आर लाइकिंग इट और नो। तो जब आप लोग कमेंट करेंगे ना तो मुझे पता चलेगा, कुछ भी सजेशंस हो, कुछ भी इश्यूज़ हो इस क्वेश्चन के बारे में, कुछ डाउट हो, वो भी आप लोग कमेंट में भेज सकते हो, सो दैट वी विल हैव अ प्रॉपर इंटरेक्शन। एंड सून, believe me, soon I'm planning for online classes. Okay, soon I'm planning for it. I'm taking cable internet, that means internet through cable, so that things will be fine in short time. In short time, just give me 1 week time now, everything will be upright, that means everything will be all right. We are going to work on online classes as well, but videos will 100% help us in revising our concept. Okay, so that will go on, वीडियोस भी रहेंगे, और जब आप लोग सॉल्व करेंगे ना, वो सॉल्व में ऑनलाइन क्लासेस मिलूंगा, जो आप लोग सॉल्व करेंगे खुद से। तो कभी कभी क्या होता है, आप लोग लेजीनेस दिखाते हैं, कभी नहीं बैठते, कभी बैठते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, आपको एक साथ बिठा के हम लोग टुगेदर वर्क करेंगे। किस पे वर्क करेंगे? सॉल्यूशन पे, आपके कॉन्सेप्ट के अंडरस्टैंडिंग पे वर्क करेंगे, सो दैट इन फ्रंट ऑफ मी यू ऑल विल बी सॉल्विंग। टिल देन आप लोग कंटिन्यू करो, खुद का काम खुद से करो, थोड़े से रिस्पॉन्सिबल बनो। थैंक यू सो मच, बाय बाय। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू कमेंट ऑन दिस वीडियो। तो बाय बाय, सी यू टुमारो।